Okay. Uh, Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today we once again meet for our quality engineering lecture. This is the lecture number 3, and in today's lecture we discuss about the contributions of the various quality gurus in the field of the quality engineering. So, sorry, sorry, we just recall the things whichever we discussed in the previous lectures about the 8 dimensions of the quality, right? So which is very important for the perspectives of the quality improvement techniques. And in today's lecture we also discuss the various few of the things in the previous series of the lectures, and which is very important for the further footing steps of the understandings of the quality. So in today's lecture we start the discussions with the contributions of the various quality gurus. So, uh, before we start the contributions of the quality gurus, I think you all know aware about the evolution process of the qualities, right? जहाँ से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जहाँ से क्वालिटी जो है वो वर्ड का एक तरीके से इवोल्यूशंस हुआ, लोग जो है वो क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देने लगे। तो आई थिंक हमने कल जो है वो पूरा इवोल्यूशन साइकिल जो है वो हमने स्टडी करने की कोशिश की थी। In the decades of the 1960 to 1970, the period where the peoples are focusing on, or the various quality gurus are only concentrating on the quality control, right? Then the quality improvements, right? So as the decades which has started, so after the decades of the 90 to still up to the till date, the we are focusing on the total quality management. Whatever we are doing in our organizations or the workplace which have a with the total quality, the quality which is spread to the manufacturing to the level of the management who are taking the decisions about the policy making contributions. So uh, in the evolutions of the quality engineering, various famous scientists or the famous quality gurus are given their contributions to making such a beautiful concepts or the beautiful things of the methodology in the field of the quality for to control the quality, to manage the quality, right, in the manner of the qualitative manner. We are not here using any kind of the statistical kind of the techniques in the quality improvement. So this kind of improvement which is totally related to the only with the qualitative improvements of the quality engineering, right? We are using such kind of the beautiful concepts, and with using them we are improving such kind of the things with the help of the quality engineering. So we start the discussions with the first quality guru of the quality engineering in the evaluation process. In early 90s 50, the Americans who took the message of the qualities to Japan, right? जहाँ तक हम लोग बात करें इवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो अर्ली 1950s, 1915 से पहले जो है द अमेरिकन वुड टुक द मैसेज ऑफ द क्वालिटी टू द जापान। अमेरिकन्स जो थे वो जापान वालों को जो है वो क्वालिटी के बारे में मैसेज दे रहे थे, राइट? पहले जहाँ के 90s 50s की बात करूँ ना, 1950s की, तो उस टाइम के अंदर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था वो खुद को ऐसा समझता था, और एक कंसेप्चुअल थिंकिंग भी ऐसी बनी हुई थी कि द अमेरिकन साइंटिस्ट आर ओनली नोन अबाउट द word about the quality, and they are only focusing on the product quality or the product developments quality. So at the time of the Deming and Juran, ये दोनों जो साइंटिस्ट थे वो जापान को बताते थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो जापान को बताते थे कि व्हाट इज़ अबाउट द क्वालिटी, क्वालिटी क्या है उसके बारे में जापान को मैसेज देते थे। द लेट 1950s
अब 1950s का दौर जो है वो ख़त्म होने का था. द जापानीज हु हैव डेवलप्ड अ न्यू कंसेप्ट इन द रिस्पॉन्स टू द अमेरिकन्स, राइट, बाय द इशिकावा. अब यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हुआ है आपका रोल ऑफ द जापान, राइट. अब तक दुनिया में 50 से पहले ऐसा कंसेप्चुअल थिंकिंग बना हुआ था कि सिर्फ अमेरिकन्स जो है वो डैमिंग्स और जुरान जो थे वो क्वालिटी के बारे में सबको कुछ ना कुछ एडवाइस देते थे, राइट, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी. अगर मैं 1950s में वो कोई जैसे एक बहुत बड़ा मेरा एक यूनिट चला रहा हूँ, राइट, अगर मुझे कुछ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हेल्प चाहिए तो मेरे पास ऐसे कोई इंडस्ट्रियल इवोल्यूशंस में रिवोल्यूशंस में कोई ऐसे एक्सपर्टाइज या फिर कोई ऐसी साइंटिस्ट नहीं थे मेरे पास कि जिससे मैं जो है वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ ना कुछ जान सकूं. पर एक दौर था, अब 1950s जैसे ख़त्म हुआ तब एक तरीके से जापान जो है उन्होंने एक खुद का अपना कंसेप्चुअल थिंकिंग जो है वो डेवलप किया अमेरिका को बताने के लिए, राइट. और वो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे थे इशिकावा, राइट, कावरू इशिकावा. तो वहाँ से जापान के अंदर अब अमेरिका के साथ जो है वो जापान भी इस क्वालिटी इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर अब जुड़ चुका था लेट बाय द 1950s. 1970 to 1980 the western gurus who followed the Japanese industrial success which is by cross by. तो 1970 से 1908 तक के जो आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हो तो उस ड्यूरेशंस के अंदर जो है जो वेस्टर्न क्वालिटी गुरुज थे जो पश्चिम के साइड के थे, यानी जो पाश्चात्य संस्कृति से आते थे वैसे क्वालिटी गुरुज जो अमेरिकन्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो फॉलोड द जापानीज इंडस्ट्रियल सक्सेसेस. अब वो लोग क्या कर रहे थे, एक पूरा साइकिल घूम चुका था. अब वो लोग जो है वो जापानीज इंडस्ट्रियल गुरुज जो थे उनकी जो सक्सेस स्टोरीज थी, उनके जो सक्सेस कंसेप्ट थे, अब उनको फॉलो करने लगे थे. पहले कौन था, तो 50s के दौर में सिर्फ ऐसी एक कंसेप्चुअल थिंकिंग बनी हुई थी डैमिंग और जुरान के थ्रू कि वही जो है वो सिर्फ क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स और क्वालिटी कंसेप्ट के बारे में जो है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में जानते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं. फिर 50s के एंड में इशिकावा ने जापानीज के अंदर खुद के कंसेप्ट डेवलप किए. वही कंसेप्ट लेट आते आते 70s to 80s के डेकेड्स के अंदर जो है वो अब क्या हुआ था कि जो वेस्टर्न गुरुज थे उन्होंने अब जापानीज इंडस्ट्रियल सक्सेस स्टोरीज जो है उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, विच इज़ डन बाय द क्रॉस बाय. इन्होंने जो है वो ये जो है वो इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट किया. सो वी स्टार्ट आवर फर्स्ट गुरुज डिस्कशन विच इज़ डब्ल्यू एडवर्ड डैमिंग. डब्ल्यू एडवर्ड डैमिंग्स. तो ये चीज़ आपको क्यों समझनी चाहिए, तो ये जो है वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स जो है वो आपको एग्ज़ाम में जो है वो एज ए शॉर्ट नोट जो है वो पूछा जाता है कि आप डेमिंग के 14 प्रिंसिपल बता सकते हो, या फिर आप ऐसे बताइए कि डब्ल्यू एडवर्ड डैमिंग जो है वो क्वालिटी के फील्ड के अंदर उनका जो है वो क्या कंट्रीब्यूशंस था. तो आप इन चीज़ों से जो है वो आप कि ये टॉपिक जो है वो इस चीज़ के साथ जो है वो आपके लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है. तो डब्ल्यू एडवर्ड डैमिंग्स जो थे उनका जन्म जो हुआ था, उनका जो बॉर्न हुआ था वो 1900 के अंदर हुआ था और 1993 तक जो है वो उन्होंने जो है इस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के अंदर जब तक वो 93 साल तक जिए, उस 93 साल तक उन्होंने क्वालिटी के लिए कुछ ना कुछ हमें बहुत अच्छे अच्छे जो है वो प्रिंसिपल्स बताए. सो उन्होंने क्या किया था, द डब्ल्यू एडवर्ड डैमिंग जो है विच इज़ द फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, वो जो है वो क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके फादर जो है वो बोले जाते थे. द स्ट्रेस्ड मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द क्वालिटीज़. उन्होंने जो है वो एक मैनेजमेंट के लिए जो एक स्ट्रेस्ड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी क्वालिटी के लिए वो
उस चीज़ के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दिया। Who has developed a 14 points to guide a companies in the quality improvement। उन्होंने डैमिंग के जो है काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि राइट डाउन द डैमिंग 14 प्रिंसिपल और राइट डाउन द डैमिंग 14 पॉइंट्स टू इम्प्रूव द कंपनीज फॉर द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। सो उन्होंने जो है ये 14 जो है वो प्रिंसिपल जो है वो डेवलप्ड किए थे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे माने जाते हैं। द जापानीज इज एस्टेब्लिश्ड द डैमिंग प्राइज इन हिज नेम। जापानीज लोगों ने क्या किया, तो जापानीज लोगों ने इस डैमिंग के नाम से जो है वो एक डैमिंग प्राइज जो है, जैसे नोबेल प्राइज जो है वो मिलता है ना कुछ ना कुछ एक सोशल या फिर कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस ग्लोबल वर्ल्ड में देने के लिए, वैसे ही जो है वो क्वालिटी के फील्ड के अंदर ये जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो माना जाता है। डैमिंग प्राइज़ जो है वो क्वालिटी फील्ड के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज़ के बराबर जो है वो माना जाता है। तो जापानीज लोग जो है उन्होंने एक ऐसा डैमिंग प्राइज़ जो है वो एस्टेब्लिश किया। वो हर साल कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कंट्रीब्यूशन करने के लिए जो है वो डैमिंग प्राइज़ जो है वो दुनिया में किसी को देते हैं। The 15% of the quality problems are actually is due to the workers error। उन्होंने ये चीज़ बताई कि 15% जो है वो क्वालिटी की रिगार्डिंग्स जो प्रॉब्लम आते हैं वो वर्कर की एरर से आते हैं। तो एंड 85% ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर कोज्ड बाय द सिस्टम्स एंड एरर्स। और ये बता रहे कि बहुत कम परसेंटेज जो है वो क्वालिटी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स जो है वो आते हैं वर्कर के प्रॉब्लम से, वर्कर के एरर्स से। बट मेजर जो है वो चांसेस, मेजर डिफेक्टिव जनरेशन्स के पीछे जो 85% का जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो जनरेट्स होते हैं उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो सिस्टम्स एंड एरर्स होते हैं। एक सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए जो है वो 85% आपकी क्वालिटी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स जो है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की थी। Dr. W. Edward Demings is known as the father of the Japanese post-war industrial revival। एक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुआ, राइट, जापान जो है वो अमेरिका के साथ, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो है वो जापान जो है वो लोग ऐसा बोलने लगे थे कि जापान अब करीबन 50 या 100 साल तक खड़ा नहीं हो पाएगा। पर जापान ने जो है वो ये चीज़ दुनिया को रॉन्ग जो है वो साबित करके दिखाई। और जापान के अंदर जो है वो एक जैसे अभी यहाँ पे जो आत्मनिर्भर वाला कंसेप्ट चल रहा है ना, वो ऐसा ही कंसेप्ट जो है वो उस टाइम में जापान के अंदर डेवलप हुआ था। हम लोग खुद के दम पे, खुद की टेक्नोलॉजी, खुद की कंसेप्ट जो है वो खड़ा करके इस जापान को एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस बनाएंगे। अब उस टाइम पे जो है वो डैमिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और वो एक्चुअली चले गए थे अमेरिका से जो है वो जापान में, और जापान को एकदम इंडस्ट्रियल रिवाइवल बना दिया था। एंड इट वॉज रिगार्डेड बाई मैनी एज दी लीडिंग क्वालिटी गुरुज इन द यूनाइटेड स्टेट। ऐसा काफ़ी कुछ लोगों ने यूनाइटेड स्टेट से किया था। ट्रेंड एज ए स्टेटिस्टिशियंस, वो एक ट्रेन स्टेटिस्टिशियंस थे। हिज एक्सपर्टाइज वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इनकी जो एक्सपर्टाइज थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो भी यूज़ की गई टू असिस्ट द यूनाइटेड स्टेट इन इज एफर्ट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वॉर मटेरियल्स। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस रहा था। अमेरिका ने जो है वो उनका यूज़ एज एक स्टेटिस्टिशियन, बहुत बड़े स्टेटिस्टिशियन के रोल पे उनका कंट्रीब्यूशंस जो है वो कैसे जो वॉर मटेरियल है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, एफर्टलेसली यूटिलाइज करना चाहिए, उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अमेरिका के साइड से रहा था। ही वॉज इन्वाइटेड टू जापान। अब उसके बाद वो जो है वो जापान के अंदर उसको इन्वाइट किया गया एट द एंड ऑफ द वॉर वर्ल्ड सेकेंड बाय द जापानीज इंडस्ट्रियल लीडर्स एंड द इंजीनियर्स। जापान के जो इंजीनियर्स थे, इंडस्ट्रियल लीडर्स थे, उन्होंने उनको बुलाया कि आप जापान आइए। दे आस्क फॉर
Dr. Deming, how long it would take to shift the perceptions of the world from the existing paradigm that the Japan is produced the chip shoddy limitations to one of the producing innovative quality product. उनका एक क्वेश्चंस था कि क्या कैसे जापान जो है वो कुछ कम दाम में जो लोगों की लिमिटेशंस है उस के अंदर जो है वो ऐसे कुछ क्वालिटी जो है वो इनोवेटिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो दुनिया को दे सकता है. द डॉक्टर डेविंग इज टोल्ड द ग्रुप दैट इफ़ दे वुड फॉलो हिज डायरेक्शंस, उन्होंने बताया कि आप अगर मेरे बताए हुए जो है वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, दे वुड अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम इन द 5 years. उन्होंने बताया कि आप मैं 50 साल की बात तो मत करिए, मैं आपको 5 साल में बता सकता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे एक क्वालिटी प्रोडक्ट के नाम पे जो है वो जापान दुनिया में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क खड़ा कर सकता है. द फ्यू ऑफ द लीडर्स इज बिलीव्ड हिम बट दे वेर ashamed to say so, and they would be harassed if he was invited back to the Japan time after time, where he became a revered counselor. For his efforts, he was awarded the second order of the scared treasury by the empire. The Japanese scientists and the engineers is named the famed Deming Prize after him. इनके इतने बड़े जापान के कंट्रीब्यूशंस के बाद जो है जो जापान के इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, उनके इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद उन्होंने जापान के उस टाइम के बाद उन्होंने एक डेमिंग प्राइज़ जो है वो उनके जाने के बाद जो है वो देना स्टार्ट किया. इट इज़ bestowed on the organizations that apply and achieve a stringent quality performance criteria. हर साल जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऐसे कुछ नॉमिनेशंस जो है वो मंगवाते हैं और लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए जिन्होंने एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ क्वालिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा अचीव किया गया है और उसके बाद जो है वो डेमिंग प्राइज़ जो है वो दिया जाता है उनको, उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट होता है. एस्टेब्लिश्ड इन द December 1950s in the honor of the W. Edward Demings was originally designed to reward Japanese companies for the major advance in the quality improvements. Over the years, it has grown and is now also available to a non-Japanese company. पहले वो जापानीज कंपनीज को लिए ही था, अब टाइम के साथ जो है वो पूरी वर्ल्ड की कंपनीज के लिए जो है वो दिया जाता है. एंड albeit usually operating in the Japan and also to the individual recognitions as having made a major contributions to the advancements of the quality. पहले अब 2 कैटेगरीज इसमें जोड़ दी गई है. पहले एक था कि जो इंडस्ट्रियल ग्रुप ऐसा कुछ क्वालिटी एक तरीके से रिवोल्यूशंस वर्क करता है उनको दिया जाता था. अब इंडिविजुअली जिन्होंने कुछ कंपनीज़ के अंदर कुछ ऐसा कुछ किया है क्वालिटीज़ के बारे में तो उनको भी ये चीज़ दी जा सकती है. द अवार्ड सेरेमनी इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी ईयर इन द जापान ऑन द नेशनल टेलीविजन्स. ये जो डेमिंग प्राइज़ की जो सेरेमनी होती है वो एवरी टाइम नेशनल टेलीविजन्स के ऊपर जापान के अंदर ब्रॉडकास्ट होती है. द टाटा स्टील इन 2008 एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स इन 2003 दे आर गॉट दैट काइंड ऑफ द डेमिंग प्राइज. अब जो दूसरे गुरु थे उनका नाम था काओरू इशिकावा. उनका क्या कंट्रीब्यूशंस था तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 1950s के बाद जापान ने खुद अपने कंसेप्ट जो है वो डेवलप करने के स्टार्ट किए. पहले उन्होंने डेमिंग और ऐसे साइंटिस्ट की मदद की जो यूएस से थे, राइट. अब वो 20 साल तक जो है उन्होंने ऐसे कंसेप्ट जो है ऐसे क्वालिटी गुरुज को जो है वो बार बार जापान में बुला के उनके काउंसलर उनको रख के उनका
वहाँ पे हेल्प ली और एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस जो है वो जापान के लिए जो है वो स्टार्ट किया. अब समय थोड़ा चेंज हो रहा था, टाइम हो रहा था, और उसके बाद जापान के अंदर भी जो है वो ऐसे साइंटिस्ट जो है उनका कंट्रीब्यूशंस धीरे धीरे बढ़ने लगा. हिज notions of the company wide quality control, which is called as a continued customer service. This means that the customer would continue receiving the service even after receiving the product. उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशंस था कि वो जो है वो ऐसा मानते थे कि जिस कस्टमर ने एक बार उस कंपनी से प्रोडक्ट ली है, उस कंपनी को बार बार वहाँ से सर्विस जो है वो मिलनी चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए. The service would be extended across the companies in the all the level of the managements. The quality improvement is a continuous process. वो हर बार जो है वो मानते थे कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है वो एक बहुत लंबी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये ऐसा नहीं है कि अब ये प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट बन चुके हैं, अब इसमें कोई जो है वो चेंजेस नहीं हो सकते, कोई भी एडवांसमेंट नहीं हो सकता. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये एक कंटिन्यूस काइंड ऑफ द प्रोसेस है जो निरंतर जो है वो प्रोसेस चलना चाहिए. एंड इट कैन ऑलवेज बी टेकन इन टू द वन स्टेप फर्दर. वो एक स्टेप हमेशा आगे बढ़ना चाहिए. विथ हिज कोज एंड इफेक्ट डायग्राम्स ही कॉल्ड एज इसिकावा और द फिश बॉन्ड डायग्राम. उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो कैसे जो है वो प्रोडक्ट के अंदर से जो डिफेक्ट है उसके जड़ तक पहुँचे, तो उन्होंने उस लिए जो है वो कोज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है वो बनाया था. इसको जो है इसिकावा डायग्राम और फिश बोन डायग्राम, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो फिश के बॉन्ड जैसा होता है, इसलिए इसको फिश बोन डायग्राम भी बोला जा सकता है. दिस मैनेजमेंट लीडर इज मेड अ सिग्निफिकेंट एंड अ स्पेसिफिक एडवांसमेंट्स इन द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स. So this is the one of the schematic figures of the cause and effect diagram, and also which is called as a fishbone diagram. तो धीरे धीरे आपको सपोज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनके जो है वो आप फैक्टर्स लीजिए कि जैसे मैन है जिसमें इन्वॉल्व है, मशीन है, मटेरियल है, राइट, मनी इन्वॉल्व है. तो ऐसे पैरामीटर को ले लीजिए और उस पैरामीटर के सब पैरामीटर्स को लेके एक वन बाय वन उसको चेक करते जाइए. आपको लास्ट में एक ऐसा पैरामीटर्स मिलेगा जिसके कारण जो है वो ये जो है वो प्रॉब्लम कि आप जड़ तक जो है वो पहुंच जाएंगे. और जो ग्रीन बॉक्स है वो उसका जड़ है, तो वहाँ से आप धीरे धीरे उस तक पहुंच जाएंगे, विच इज़ दी फिश बॉन्ड डायग्राम. सो आज की लेक्चर के अंदर जो है हमने अभी तक जो है वो दो साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस को जो है वो स्टडी करने की कोशिश की थी. नेक्स्ट साइंटिस्ट विच इज़ दी, पहले हमने पढ़ा डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग, फिर काओरू इशिकावा. अब तीसरे जो है वो क्वालिटी गुरु है विच इज़ द फिलिप बी क्रॉसबाई. अब रिवॉल्यूशंस एकदम चेंज हो चुका था. अब क्या हुआ था कि जापान जो है वो धीरे धीरे खुद इतना इंडिपेंडेंट हो गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के अंदर. अब इनके दौर से लोग ऐसा सोचने लगे कि रिवर्स एक तरीके से वाइस वर्सा हो गया. अब जो वेस्टर्न क्वालिटी गुरुज थे वो जापान के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस को फॉलो करते थे इनके टाइम से. सो द फिलिप बी क्रॉसबाई, ए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट्स एंड द डायरेक्टर ऑफ अ क्वालिटी, एक कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो वाइस प्रेसिडेंट्स थे और द डायरेक्टर ऑफ द क्वालिटी थे फॉर द 14 years, which is gained a lot of attentions when published his book The Quality is Free in 1979. उन्होंने वो बहुत जो है वो फेमस हुए थे जब उनका एक बुक जो था द क्वालिटी इज फ्री, जो 1979 में पब्लिश हुई थी. द कन्वेंशनल विजडम एट दैट टाइम was that each level of the quality has some price. उन्होंने बताया था कि हर एक जो क्वालिटी के लेवल है उसका कुछ ना कुछ जो है वो प्राइस है. फॉर एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ द डिफेक्ट फ्रॉम द 8% टू द 3% वुड कॉस्ट अ लॉट. आप 8% से आप 3% तक लाओगे तो उसके पीछे बहुत सारा जो है वो एफर्ट्स लगता है, कुछ ना कुछ प्राइस इसके पीछे आपका लगेगा. The basis of this belief was the notion that the improvements in the quality which is required the purchase of the improved machines, better materials and a more labor skills. The Crosby is pointed out that the poor quality has a hidden cost.
which is increase the labors, machine hours, increase the machines failures, customer dissatisfactions, delivery delays, lots failure sales, and the increase in the warranty cost. तो उनका यही मानना था कि जो पुअर क्वालिटी है उसके पीछे बहुत सारे हिडन कॉस्ट जो है वो लगे हैं, जैसे काम के घंटे जो है वो बढ़ जाना, मशीन हावर बढ़ जाना, मशीन का फेलियर ज़्यादा होना, कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन, ये सारे जो है वो हिडन कॉस्ट है. द क्रॉसप्राइज बिलीव्स दैट this cost is typically drop the cost of the machines, materials, and training is needs to foster the high quality. ये इनका importance ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे. The saving which is created by the reductions of the hidden cost can offset the cost which is incurred to create the proper environment. एक proper environment, एक train environment जो है वो खड़ा करके ऐसे hidden cost जो है उसको कम किया जा सकता है. They developed a 14 steps of the quality improvement. The first step, which is make it clear that a management is committed to the quality. Management जो है वो quality के लिए committed है. Second, which is form a quality improvement team with a senior representative from the each department. हर एक department से एक senior representative को लेके जो है वो एक quality improvement team बनाइए. एनालिसिस द प्रोसेस को आप एनालाइज करिए टू डिटरमाइन वेयर द करंट एंड द पोटेंशियल क्वालिटी इज प्रॉब्लम इज लाइट. कहाँ पे जो है वो करंट प्रॉब्लम आ सकते हैं और कुछ आने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं, उनको डिटरमाइन करिए. इवैल्यूएट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, देन रेज द क्वालिटी अवेयरनेस को बढ़ाइए, सबको क्वालिटी के अंदर इन्वॉल्व कर लिए. टेक द एक्शंस टू करेक्ट द प्रॉब्लम and identify through the previous steps. The seventh, which is establish a progress monitoring for the improvement process. एक continuous progressive monitoring जो है process को बना दीजिए. 8, which is train the supervisor to actively carry out their part of the quality improvement program. इनको train करिए supervisor को, जो हर एक प्रोसेस जो है वो हर एक एक्टिविटीज़ के अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस को जोड़ दें. होल्ड अ ज़ीरो डिफेक्ट डे, एक ऐसा एक दिन जो है वो उस प्रोडक्ट को ऐसे दिन तक लेके जाइए जो ज़ीरो डिफेक्ट डे जो है वो बन जाए. 2, रिफ्रेम द मैनेजमेंट कमिटमेंट्स. एनकरेज द इंडिविजुअल टू एस्टेब्लिश द इम्प्रूवमेंट गोल्स फॉर देमसेल्फ एंड देयर ग्रुप्स. Encourage the employees to tell the managements about the obstacles to improving the qualities. आप एम्प्लॉयज़ को जो है वो एनकरेज करिए कि वो मैनेजमेंट को बता सके कि कैसे जो है वो क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है, क्योंकि एक्चुअली वो लोग जो है वो काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रोसेस को ज़्यादा बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे. तो एनकरेज करिए कि वो इन्वॉल्व हो जाए इस क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अंदर. देन रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट दोज हु इज़ पार्टिसिपेटिंग, उनको अप्रिशिएट करिए, रिकॉग्नाइज करिए. एंड एस्टेब्लिश ए क्वालिटी काउंसिल कम्युनिटी फॉर अ रेगुलर बेसिस. ऐसे एक कम्युनिकेट काउंसिल बनाइए जो इसके बारे में बात कर सके. एंड द 14 पॉइंट लास्ट पॉइंट विच इज डू इट ऑल ओवर अगेन टू एम्फसाइज दैट द क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस इज नेवर एंड. इनको बार बार जो है वो करते जाइए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो ख़त्म होने वाली प्रोसेस नहीं है. So this is the contributions of the 14-step contributions of the Philip B. Crosby. So आज के लेक्चर के अंदर हमने 3 क्वालिटी गुरु के कंट्रीब्यूशंस के बारे में, क्वालिटी इंजीनियरिंग के कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा. अगर इस चीज़ के अंदर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं. जैसे ही ये आप का लेक्चर जो आप देख ले पूरा लेक्चर, उसके बाद आपको कमेंट सेक्शंस के अंदर जो है वो आपका एनरोलमेंट नंबर जो है वो लिखना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.